This is a webinar for the purpose of discussing very seriously your financial career. All of you who are present in this are here because you want to make a great career in the world of finance. There is no doubt about it. If anybody over here has come for some other purpose, that purpose will not be fulfilled. You may be fresher, class 12 pass kiya hai aapne, you are going to enter college. You may have joined CFA, you may not have joined CFA. You are a CFA level 2 student or a level 3 student or level 3 passed out. You are a chartered accountant or a person who are WIP stage पे chartered accountant. You understand? I keep on meeting कि chartered accountant the WIP stage यानी CA कर रहे थे फिर बीच पे छोड़ दिए. भर भर के लोग ऐसे मौजूद है. अपने मोहल्ले में देख लेना. ठीक है. तो we are addressing them also. We are addressing those students who do not come from finance background, who come from some, eco background. Plus two में they had done science or who had done BTech and they find that ultimately जाके तो पैसा finance में ही है. ठीक है. We are addressing even working professionals who have been into accounting, taxation, audit, and they feel that that field is not attractive enough. They want to get into finance. So there is a whole variety of audience, ladies and gentlemen, because females are there, males are there, boys and girls. So we are having a webinar on your financial career through a topic called financial modeling. This is not CFA, this is not FRM, this is not CA. We are not talking about certifications. We are talking about real life. So please understand something. When I visited US last month, so I was sitting with around 7 or 8 students in Stanford. Okay, मेरी बेटी रिभ्या के फ्रेंड्स थे तो उनके साथ बैठा था. They're all in their second year, some of them third year, and we were just discussing as to what are they doing in the world of finance. And I was amazed by the differential manner in which studies take place over there. Believe me, it's totally practical, it's totally applicative, it is not theoretical at all. One of them was also doing classes with me, CFA level 2 में अब एंटर किया है. And over the period I have recognized that कोई भी फॉरेन स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन जाते हैं या जो क्या बोलते हैं लोग ABCD बोलते हैं कि अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी. हाँ, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी, दैट्स व्हाट द एक्रोनिम इज. कि जो अमेरिकन बॉर्न है इंडियन ओरिजिन के और कंफ्यूज्ड है वो इंडिया के कि बाहर के. None of them take financial modeling classes from India. Believe me, none of them take financial modeling classes from India. They take CFA classes from India. They take FRM classes from India. But none of them take financial modeling classes from India because financial modeling का classes India में कैसे होता है? Believe me, माने it is below gravity. And खासकर इस जमाने में where we are in the post AI world, what is happening is, let me tell you what's happening. जो senior managers हैं in sell side firms, in buy side firms, in investment banks, in consultancies, और जिनको हायर करना है जूनियर्स को एंड जो उनको सिखाते हैं ट्रेन करते हैं, द सीनियर्स आर रियली इन अ कंफ्यूजन. क्या कंफ्यूजन? कि यार हमें क्या जूनियर्स को हायर करना चाहिए क्या? ये फैक्ट है. कोई भी अपना जो फाइनेंशियल करियर बनाना चाह रहा है वो ठीक से समझ ले कि दिस इज अ फैक्ट दैट सीनियर्स आर नाउ डे इन अ डिलेमा कि क्या जूनियर्स को हायर करना चाहिए. रीजन है AI इज एबल टू डू मोस्ट ऑफ द जॉब. अगर कोई अर्निंग्स कॉल है, किसी कंपनी का रिजल्ट्स आया है, उसको एनालाइज करना है, AI डज इट. अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना है, AI डज इट. अगर कोई मॉडल बनाया हुआ है PL अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉरवर्ड लुकिंग, और उसको अपडेट करना है, AI डज इट. कोई समरी रिपोर्ट बनाना है, AI डज इट एफिशिएंटली, फास्टर. तो इन दैट केस व्हेन AI डज इट, व्हाई डू वी नीड जूनियर्स एंड व्हाई एट ऑल? Look at a career in finance कैसे होगा? So the point is that there are two types of juniors. Number one, the old junior जो मैकेनिकल पर्सन था, जिसको एक्सेल शीट आता था, जिसको एक्सेल शीट का शॉर्टकट्स आता था, जिसको कमांड मारना आता था एक्सेल शीट में, जिसको मैकेनिकल काम आता था.
ठीक है, द ओल्ड जूनियर, ओल्ड, देर इज नो स्पेस फॉर दैट पर्सन, बिलीव मी, एंड देर विल बी नो स्पेस, नहीं बोल रहा हूं देर इज नो स्पेस, देर इज फायरिंग टेकिंग प्लेस एंड हायरिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस, बट देर इज द एआई ऑगमेंटेड जूनियर, वो जूनियर जो एआई को यूज करता है, जो एआई को ऑडिट कर सकता है, जो एआई का हेल्यूसिनेशन पकड़ सकता है, जो कंपनी जिस पे रिसर्च किया जा रहा है उसके डेप्थ को जानता हो, ओके, जो हर तरीके से केपेबल है फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग क्वालिटी इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू से इन द पोस्ट एआई वर्ल्ड, जो पहले था ना कि बस एक्सेल आता है, ये आता है, वो आता है, आपको हो जाएगा, वो एकदम भी नहीं है। यू हैव टू नो द वे इन विच यू ओपन अप कंपनीज। लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू आस्क मी कि सर फाइनेंशियल मॉडलिंग का रिक्वायरमेंट है क्या, द आंसर इज फाइनेंशियल मॉडलिंग इज अ नेसेसिटी, इट इज नॉट सफिशियंट। वो एकदम मस्ट है कि आपको एक्सेल फाइनेंशियल मॉडलिंग आना ही चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर इज दैट आप जिस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, आपको उस कंपनी का इन डेप्थ आइडिया होना चाहिए। आपके जो अजम्पशंस हैं, द अजम्पशन शुड बी परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आप उसका जवाब देना। देर आर सपोज 4 कंपनीज, वन इज इंफोसिस, द सेकेंड इज टाटा मोटर्स, द थर्ड इज इंडिगो, द फोर्थ इज पीवीआर। इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, इंडिगो, पीवीआर, एक बार लिखते जाता हूं, ठीक है ना, फिर मैं आपका चैट देखूंगा। जस्ट 1 सेकेंड। सो आई स्पोक अबाउट 4 कंपनीज ओवर हियर। या, इन्फोसिस, पीवीआर, सब कॉमन नाम लिया है मैंने, टाटा मोटर्स, इंडिगो, ये 4 कंपनीज का नाम लिया। लेट्स टॉक कॉमन सेंस ओवर हियर। इन चारों कंपनीज में से किस कंपनी के साथ यू विल एसोसिएट दिस मेट्रिक, लिखो मेट्रिक, तो आई एम राइटिंग द मेट्रिक। सो द मेट्रिक इज RASK, फुल फॉर्म लिख दो, रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर। यस प्लीज, आंसर इन द चैट, आई विल सी। रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, ये आप किसके साथ एसोसिएट करोगे? विथ इंफोसिस और पीवीआर और टाटा मोटर्स और इंडिगो। रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर। ठीक है, लेट मी ओपन द चैट एंड सी व्हाट पीपल आर रिप्लाइंग। ओके, आई एम लुकिंग एट द चैट। ओके, सो 100% आंसर करेक्ट है, 99.99%। मतलब राजेश एक्सपोर्ट्स का बोलते हैं ना, 99.8% रेवेन्यू गड़बड़ था, फ्रॉड था। ठीक है, तो 99.8% आप लोग का आंसर करेक्ट है। नीरव का आंसर रॉन्ग है, एक दो स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर दिया है, बट अदरवाइज एवरीबडी हैज आंसर्ड करेक्टली। द आंसर इज इंडिगो। तो जो एयरलाइंस है, वो लोग का सीट किलोमीटर, ओके, नंबर ऑफ सीट्स 200 है एयरलाइन में, और कितना किलोमीटर वो ट्रैवल करेंगे, वो सीट किलोमीटर के हिसाब से कॉस्टिंग आता है। तो रेवेन्यू इज कंपेयर्ड विद द रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर इज लाइक द प्राइस पर यूनिट। तो इंडिगो का होगा। सेकेंड वाला पूछ रहा हूं, सेकेंड वाला इज लोड फैक्टर। लोड फैक्टर ये चारों में से किस कंपनी का है? लोड फैक्टर ये चारों में से किस कंपनी का है? सेम कंपनी का हो सकता है, ध्यान रखना, सेम कंपनी का हो सकता है, ध्यान रखना। इस बार बहुत जन ने रॉन्ग की है, बहुत लोगों ने रॉन्ग किया है, मैंने फंसा दिया, मैंने पूरा का पूरा फंसा दिया। लोड फैक्टर इज ऑल्सो विद द एयरलाइन इंडस्ट्री, इंडिगो। तो बदमाश बहुत हूं मैं। ठीक है, तो इंश्योर दैट लोग रॉन्ग करें। लोड फैक्टर मतलब अल्टीमेटली जाके कितना एयरलाइन भरा हुआ है। थर्ड, ऑक्यूपेंसी रेशियो, नहीं ऑक्यूपेंसी रेशियो अपने नहीं डालेंगे यहाँ पे, काटो काटो काटो, ऑक्यूपेंसी रेशियो डालो। अ, फिर फोर्थ वाले का नाम डाल देता हूं यहाँ पे, फिफ्थ कंपनी का नाम डालो ऊपर, IHCL। IHCL, इंडियन होटल्स, जो ताज ग्रुप है ना, इंडियन होटल्स, उस पर भी टॉक अबाउट ऑक्यूपेंसी रेशियो।
आई नो पीवीआर में ही बात कर सकते हैं, लिखो ऑक्यूपेंसी रेशियो। ऑक्यूपेंसी रेशियो कि जो होटल बिजनेस है उसमें कितना ऑक्यूपेंसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीवीआर आइनॉक्स में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएचसीएल एंड पीवीआर दोनों में। करेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट हेड काउंट, नहीं हेड काउंट यहां लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, चलो मन से पूछता हूं, हेड काउंट कौन से इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है हेड काउंट में? हेड काउंट बहुत जोर से आईटी इंडस्ट्री में, वेरी गुड। टीसीएस लिखो पॉइंट नंबर 6 में। टीसीएस, टीसीएस ओ इन्फोसिस है ना, इन्फोसिस, इन्फोसिस दे, आई डेंट सी इन्फोसिस हेड काउंट। तो हेड काउंट इन्फोसिस में देखा जाता है कि हेड काउंट कितना है। ठीक है, अब एआई वर्ल्ड में तो हेड काउंट कम इंपॉर्टेंट होने वाला है इवन इन्फोसिस के लिए। हाउ सर? बिकॉज द आईटी बिजनेस लिव्स ऑन पीपल, इट्स अ पीपल बिजनेस। They are earning because of their human capital, TCS and Infosys. And that is the problem, that whether in the post AI world this will be true or not. तो हेड काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल से दैट्स अ हेड काउंट, क्या इंडिगो में इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सबसे मेन चीज, हेड काउंट मतलब द टोटल नंबर ऑफ पीपल, द टोटल नंबर ऑफ आईटी पीपल, ओके, द कोडर्स एंड ऑल दैट हु आर वर्किंग फॉर इन्फोसिस। ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द कैपेसिटी, इफ वी टॉक अबाउट द कैपेसिटी, ओके, कितना कैपेसिटी है प्रोडक्शन का, कैपेसिटी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर विच कंपनी? कैपेसिटी टाटा मोटर्स, कैपेसिटी टाटा मोटर्स, कैपेसिटी टाटा मोटर्स। इफ यू राइट डाउन डी मार्ट ओवर देयर पॉइंट नंबर 6 में, डी मार्ट, अगर डी मार्ट का नाम लिखे अपने पॉइंट नंबर 6 में, डी मार्ट, तो डी मार्ट में one would look at, for example, same store sales growth, same store sales growth, ओके, नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाते जाते ना, और सेम स्टोर्स पे क्या सेल्स ग्रोथ आ रहा है। द गुड थिंग इज दैट मोटा मोटी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स बाय कॉमन सेंस, यू आर अंडर दीज थिंग्स। दैट गोज टू शो दैट इन्वेस्टिंग इज सच अ कॉमन सेंसिकल एक्सरसाइज। Investing is such a commonsensical exercise because if explained properly, people understand more, and that is the reason why history honors people, literature honors people have done great in finance. The biggest fund managers in the world have not been IITians, have not been the people from MITs, have been history honors and literature honors students, because ultimately it's about common sense. It's about common sense. Okay. So in that case, you can check out, for example, the background of George Soros. I know George Soros के तरफ इंडिया में बहुत ज्यादा एनिमिटी है बिकॉज वो भारत के अगेंस्ट में जाता है, बट अभी अपने फाइनेंशियल फंड्स का बात कर रहे हैं। तो इन दैट केस वी मे चेक आउट ऑल दोज थिंग्स एंड यू कैन सी कि लिटरेचर ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स वाले कौन कौन से लोग हैं जो लोग बहुत ज्यादा बड़ा किए हैं फाइनेंस इंडस्ट्री में। सो what I mean to tell you is that, okay, let's go to a fresh Excel sheet. We do financial modeling for the purpose of investing decisions. Let's write down. We do financial modeling. We do financial modeling for the purpose of investment decisions. Investment decisions. ओके, इसके लिए अपने फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, प्राइवेट इक्विटीज, वॉट एवर, but we are doing financial modeling for the purpose of investment decisions. And I think this problem, this point is forgotten by most people. Okay, लोग ध्यान ही नहीं करते कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे क्यों है। अल्टीमेटली फाइनेंशियल मॉडलिंग में देखो, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग इन्वॉल्व्स a forward looking estimate, a forward looking estimate of the fortune of a company, forward looking estimate of the fortune of a company, of the fortunes of a company. Okay, and this is manifested in the form of income statement, balance sheet and cash flow statement. Income statement, balance sheet and cash flow statement. Let us all remember our childhood days. जिन्होंने भी अकाउंट्स किया है, ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, करेक्ट, और एडजस्टमेंट्स दिया रहता था। थोड़ा छोटा कर दो। ट्रायल बैलेंस दिया रहता था और एडजस्टमेंट्स दिया रहता था। ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स, और वो जो ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स है उसके हेल्प से अपने को फाइनल अकाउंट्स बनाने बोलता था। शीट 1 में ना,
ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट से अपने को फाइनल अकाउंट्स बनाने बोलता था, और अपने कैसे स्ट्रगल करते थे बैलेंस शीट को मैच करने में, याद आ रहा है? एक बार सब जन बचपन में चले जाएं, ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टमेंट से, तो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, ठीक है ना, एंड बैलेंस शीट को मैच कराते थे। क्या सेटिस्फैक्शन आता था। ये एकदम बच्चा बच्चा जो अकाउंट्स किया हुआ है, दे हैव डन दिस, कि बैलेंस शीट शुड टैली, करेक्ट। नाउ फाइनेंशियल मॉडल फॉर दोज हु आर न्यू कमर्स इज बेसिकली आपको सेम चीज फ्यूचर का बनाना है। यू हैव टू मेक द सेम थिंग फॉर द फ्यूचर। तो फॉर द फ्यूचर यू हैव टू मेक द इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। यू हैव टू मेक द बैलेंस शीट टैली। यू हैव टू इंश्योर दैट बैलेंस शीट में जो कैश बैलेंस है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से मैच हो। यू हैव टू इंश्योर दैट इनकम स्टेटमेंट में जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो बैलेंस शीट से मैच हो। तो ऑल द इंटीग्रेटेड आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, फॉरवर्ड लुकिंग। बट सबसे बड़ा दिक्कत क्या है जानते हैं इसमें? इसमें दिक्कत ये है कि सर, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स बनाने में फोरकास्ट कहां से आएगा? प्लीज राइट डाउन। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मॉडल, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मॉडल, उसके नीचे कैश बैलेंस इन द बैलेंस शीट, कैश बैलेंस इन द बैलेंस शीट should match with the cash flow statement, should match with the CFS. उसके बाद retained earnings from the income statement, retained earnings from the income statement should flow to shareholders equity, should flow to shareholders equity, ठीक है। ऑब्वियसली बैलेंस शीट शुड टैली, नीचे बैलेंस शीट मस्ट टैली। तो ये सब चीज तो लोग ध्यान रखते ही हैं, बट आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, दे आर लाइक अ गिवन। The most important thing is that how would you get the forecast? लिखो, how would you get the forecast? How do you get the forecast? तो forecast कैसे आएगा? How do you get the forecast of the company? ठीक है, जिसको इसका जवाब देना है कि forecast कैसे आएगा, वो लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल अलाउ देम टू स्पीक। बाकी जन सब हैंड नीचे कर ले प्लीज, अगर हैंड रेज किया हुआ है। एंड दोज पीपल हु वांट टू आंसर फोरकास्ट कैसे आएगा, वो अपना हैंड रेज करे प्लीज। ओके, यस प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू स्पीक आउट, फोरकास्ट कैसे आएगा। आई एम लुकिंग एट, ओके, कुणाल, कुणाल ने हैंड रेज किया है। अटेंडीज नहीं, बहुत जन ने हैंड रेज किया है। विराज, विराज अलाउड टू टॉक, यस प्लीज विराज बोलिए। Sir, if we want to forecast the assumptions, first we have to read the annual report of the company, of the concerned company, maybe last four con calls of the company. Then we have to figure out what's the tone of the management in that con calls, whether they are defensive or they are going aggressive in that particular sector, how's the economy growing, how that particular sector has been doing from past few, like for quite a bit some time. Then a few reports from like the reports of that sector from different organizations, and by clubbing all the data that we have gathered, we can forecast the sales, COGS, and other aspects that we are required to build a financial model. Okay, so given the fact that you have straight away answered in a public forum, okay, I will give you 8 out of 10 because इस तरह से guts wise answer करना is a caliber exercise. Okay, thanks a lot. Let me move to somebody else. कोई कुछ ऐड करना चाहता है क्या? पुलकित मोहता, yes, पुलकित मोहता। Hello, good evening, sir. Actually, first we'll have to check that what type of company is it. If it's a well-built company which has been stable for a while, I think we can check from the past growth, and also check for their con calls. It will give a fair idea of how the company will be in future, and we can do forecast according to that. And I think if we go for SME or startup companies, I think we'll have to either go for dual model, which means that first of all we'll take growth to be higher, then we'll stabilize it, and in that way we can do forecast. And we will require con call, and
management's approach to how they are planning the future. Okay. The best thing about once again both these guys, Pulkit and uh, Viraj, is that Pulkit spoke something different. Okay. He spoke about the maturity of the company. That is what I liked. And Viraj spoke about the basic things, the annual report and all that. Okay. So that's very good. I am really impressed. 1 minute. Now, let me now come to the thing because obviously many people can add to this. Okay. So let me now show you how do I go about it structurally when I do a financial model. Just 1 second. The answers that Viraj and Pulkit gave were in the same direction, but let me just articulate it well. इसको properly बनाते हैं जिससे जो newcomers है उनको भी समझ में आए. सबसे पहला चीज ये है कि जो कंपनी है उसके बारे में अपने को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द कंपनी ऑल अबाउट. ठीक है ना. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपनी ऑल अबाउट. तो दैट्स कॉल्ड द बिजनेस मॉडल. लिखो, बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी. बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, हु एंड हाउ. आई थिंक बहुत जन को इसका फुल फॉर्म पता है. व्हाट डज द कंपनी सेल, whom डज इट सेल एंड हाउ डज इट मेक मनी. हर कंपनी के लिए ये बेसिक क्वेश्चन तो होगा ही. सर ये क्या माल बेचता है, प्रोडक्ट है या सर्विस है. ओके. किसको बेचता है. whom डज इट सेल टू. क्या वो B2B है, B2C है. B2C है तो कौन सा कैटेगरी है. ठीक है. एंड हाउ डज इट मेक मनी. वो अपने कंपटीशन को कैसे हराता है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, वो एसेट्स में खुद का पैसा लगा रखा है या लीज पे ले रखा है. ठीक है. इज एन एसेट लाइट बिजनेस, एसेट हेवी बिजनेस, ये सारा चीज देखना पड़ता है. व्हाट, हु एंड हाउ. ठीक है. दैट्स द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी. दैट रफली इफ यू आर वेरी स्मार्ट, जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे एंड प्राइमा फेशिया आप कर रहे हैं, इट विल टेक यू अराउंड 20-25 मिनट्स टू डू दिस. बट आप शुरू शुरू में है तो व्हाट, हु एंड हाउ में टेक यू 1 कंप्लीट डे, अगर आप पूरा डेडिकेशन से लगे हुए हैं तो ये है कि अपने को कंपनी का बिजनेस मॉडल, धंधा समझना पड़ेगा. धंधे के बिना अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग चालू कर दी है तो इट्स, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड बट इट्स बुलशिट. ओके. उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि सर ये जो आपने बोला ना समझना पड़ेगा, ये समझेंगे कहां से. सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सोर्स डॉक्यूमेंट्स. तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स का बात विराज कर रहा था. विराज स्पोक अबाउट द एनुअल रिपोर्ट. ओके. द गॉड ऑफ एवरीथिंग. विराज स्पोक अबाउट द कॉन कॉल्स. विराज आई थिंक स्पोक अबाउट एनुअल रिपोर्ट और कॉन कॉल्स का विराज ने बात किया था. तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हमने एनुअल रिपोर्ट लिख लिया, कॉन कॉल्स लिख दिया, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस. ओके. जो पीपीटी फॉर्म में होता है तो बेटर समझ में आता है. कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस आर इवन बेटर. कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस. ठीक है. दे आर मोर इलैबोरेट. आईसीआर, इनिशियल कवरेज रिपोर्ट, ये भी विराज ने बोला था कि सर किसी और सेल साइड एनालिस्ट का हम लोग रिपोर्ट पढ़ेंगे उस कंपनी के बारे में. इनिशियल कवरेज रिपोर्ट. Initial coverage report is like a story written about the entire company. Very good to read. Which means if you ask me, मैं एनुअल रिपोर्ट से स्टार्ट नहीं करता हूँ. मेरे को कोई नया कंपनी मिलता है ना, स्मॉल कैप कंपनी से 800 करोड़ 1000 करोड़ का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद द आईसीआर, इनिशियल कवरेज रिपोर्ट. बिकॉज इनिशियल कवरेज रिपोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ बता देता है. सोर्स डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. सोर्स डॉक्यूमेंट्स और भी हो सकते हैं, मैंने यहां पे रुका. उसके बाद बात आता है सर रिसर्च टूल्स मास्टरी. राइट ऑन. रिसर्च टूल्स मास्टरी कि सर वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आएगा कहां से और क्या क्या टूल्स अवेलेबल है. तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हाई इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ब्लूमबर्ग, S&P कैपिटल IQ, फैक्ट सेट. लोअर लेवल पे जाए तो कैपिटल लाइन. ठीक है. इफ वी कीप ऑन एडिंग फर्दर तो इन दैट केस आप लोग को जो सबसे ज्यादा पता है कॉमन, वो है स्क्रीनर. कोई बोलेगा मनी कंट्रोल. ठीक है ना. screener.in. देयर इज समथिंग कॉल्ड वाइज शीट. वाइज शीट, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दैट और नॉट. वाइज शीट. ठीक है. उसके अलावा मतलब यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग दैट अगर आपको डिफरेंशियल इंसाइट चाहिए ना कंपनी के बारे में, डिफरेंशियल इंसाइट, वो नहीं जो पब्लिक को अवेलेबल है. एक तो है कि पब्लिक को जो अवेलेबल है वो कैसे पता चलेगा, और एक होता है डिफरेंशियल इंसाइट. उनके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं. एक होता है बाजार को कंसेंसस फोरकास्ट क्या है, वाइज शीट विल टेल यू.
व्हाट इज द कंसेंसस फोरकास्ट। और एक होता है ठीक है कंसेंसस फोरकास्ट ये है, बट जो एक्सपर्ट्स है उनसे मेरे को ओपिनियन लेना है अबाउट दिस सेक्टर, अबाउट दिस इंडस्ट्री, तो उसके लिए बहुत सारा टूल्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू नो द what is the market thinking about the company and what is the industry estimate, there is something called visible alpha. Visible alpha, I don't know whether you have heard or not, visible alpha. But if you want to know the differential insights about the company via some expert, there is something called alpha sense. Okay, alpha sense हो गया differential insights के लिए। ऑफ कोर्स ये बहुत कॉस्टली है, तो इनका चीपर वर्जन जो है वो हो गया ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन इज द चीपर वर्जन। ऐसे करके मैं लिखते जा सकता हूं यहां पे, बट आई मीन टू से ये टूल्स के बारे में अगर नहीं पता है, कौन से टूल्स जिनका पैसा लगता है, कौन से टूल्स जो मुफ्त के हैं, हमारे जिनमें 500,000 रुपया लगता है मैं उनको मुफ्त का मान रहा हूं, वो टूल्स का अपने को आइडिया होना चाहिए कि सर मेरे पास S&P कैपिटल IQ नहीं है, मेरे पास screener.in है, तो व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई यूज, मेरे पास वाइस शीट है, हाउ कैन आई यूज इट। तो ये सारा का सारा रिसर्च टूल्स पे मास्टरी चाहिए होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब विराज ने बोला कि सर एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना नंबर वन इनएफिशिएंट है, इट्स वेरी वेरी टायरिंग, योर एंटायर एनर्जी गोज अवे, एंड दूसरा इट इज नॉट इफेक्टिव नाउअडेज। नाउ वी हैव द बिगेस्ट टूल एट आवर डिस्पोजल विच इज व्हाट AI। तो इन दैट केस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक GPT और अपने क्लॉड या नोटबुक को यूज करते हैं ना, यू नो इट, वी कैन राइट दैट सेम डाउन, ओके, GPT, क्लॉड एंड क्या बोलते हैं नोटबुक LM, but the usage of these tools is much beyond what you all are doing. It is very very क्या बोलते हैं a technique by which you use them efficiently. Okay, how large language models are built, how do you ensure that notebook LM जो है ना वो एनुअल रिपोर्ट, कॉन कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, ICR सब भर देंगे नोटबुक LM में, और उससे अपने इंसाइट्स मांग लेंगे, वो खुद निकाल के दे देगा उसका इंसाइट्स नोटबुक LM। सर क्या वो सफिशिएंट नहीं है, बट गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि मेरे को खोजना पड़ता वो दे दिया। फिर भी मैं एनुअल रिपोर्ट को देखूंगा बिकॉज आई विल रीड द MDA, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, में एनुअल रिपोर्ट से डेफिनेटली बढ़ूंगा। आई विल रीड द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, आई विल रीड सम कॉन कॉल्स, बट रीडिंग के बजाय मैं नोटबुक LM को भी यूज करूंगा बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, तो नीचे उसके नीचे ऑब्वियसली एक्सेल आना पड़ेगा। यू हैव टू नो बेसिक एंड एडवांस्ड एक्सेल। ओके, यू हैव टू नो बेसिक एंड एडवांस्ड एक्सेल। ये जो पूरा लिखा हुआ है अभी तक, ये हो गया फाउंडेशंस। लेफ्ट साइड में अपने ब्लॉक बना के फाउंडेशन लिख सकते हैं। ये हो गया फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। माने अगर ये किसी को नहीं आता है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टार्ट करके फायदा नहीं है। फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, समझ गए? दिस आर द फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल मॉडलिंग का, सबसे पहले हमने ये कवर किया, दीज आर द थिंग्स दैट आर कवर्ड, कि अभी तो फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टार्ट भी नहीं किया। ठीक है, फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, दीज वे द थिंग्स कवर्ड इन फाउंडेशंस। ओके, और इसके बिना लोग चालू कर देते हैं सीधा एक्सेल से, इट डजंट वर्क दैट वे, बेवकूफी है। ठीक है, इसके बाद सर ये सब जान गए, कंपनी के बारे में आइडिया थोड़ा हो गया है सर, ठीक है, अब तो फाइनेंशियल्स के साथ खेलना पड़ेगा ना। वी हैव टू प्लॉट द ओल्ड फाइनेंशियल्स, पास्ट का 4-5 साल का प्लॉट करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू मेक अजम्पशंस, वी हैव टू मेक व्हाट इज कॉल्ड द बिल्ड माने द डिफरेंट वर्कशीट्स फॉर फोरकास्टिंग रेवेन्यू, COGS एंड ऑल दैट, ये सब करना पड़ेगा। पर उसके लिए आपको माने एक्चुअल कंपनी को पकड़ना चाहिए। तो लिखो लेफ्ट साइड में ऑपरेटिंग मॉडल। ना ऑपरेटिंग मॉडल में मैं एक बार आपको उस पे ले जा रहा हूं जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जस्ट टू शो यू व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री में फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे हो रहा है। ओके, लेट मी शो यू, जस्ट 1 सेकेंड। सो नाउ आई एम शोइंग यू इंडस्ट्री में फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे हो रहा है। हैव अ लुक एट दिस। कुछ लोग हाइपोथेटिकल कंपनी पकड़ते हैं। एग्जाम्पल सुनना, XYZ लिमिटेड इज अ गारमेंट प्रोड्यूसर बेस्ड इन सूरत। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा कहानी होगा, वो कब फाउंड हुआ था। उसके बाद उसका एकदम सुंदर सा PL अकाउंट, बैलेंस शीट दिया रहेगा, फिर उसका फोरकास्ट दिया रहेगा, एंड उसके हेल्प से बोलेगा प्रिपेयर अ फाइनेंशियल मॉडल। माने बिलीव मी, इफ यू आर डूइंग दिस यू आर इन लाला लैंड, you're not understanding what is waiting for you. How can we do financial modeling with the help of XYZ Limited?
ठीक है? तो इस तरह का फाइनेंशियल मॉडलिंग एकदम स्टूपिड है, नहीं करना पड़ता है। आपको मजा जरूर आएगा, देख बन गया मेरा, वो तो वही हो गया, अब सब सॉल्व कर दिए क्लास 11 12 में अकाउंट्स का। अपने फोरकास्टेड पीएल भी बनाते ही थे, फोरकास्टेड बैलेंस शीट भी कुछ लोगों का बनाया हुआ ही होगा, ठीक है, खासकर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है। सेकेंड होता है केस स्टडी अप्रोच। केस स्टडी अप्रोच वो है जो मैंने किया था, कब बताऊं, 1996 से 1999 में आई हैड डन द केस स्टडी अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, जिसमें हमें रियल कंपनीज का केस स्टडी दिया रहता था। इन्फोसिस है तो उसका इंडस्ट्री का राइटअप दिया रहेगा, ठीक है, और उसके बाद उसका समराइज्ड पीएल, समराइज्ड बैलेंस शीट, समराइज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर से सारा फोरकास्ट दिया रहेगा। एंड वी हैव टू क्रिएट अ फाइनेंशियल मॉडल। ये मैंने किया था 96 से 99 में। Case study approach is very, very bad for financial modeling because you are not facing the real financial statements. आप समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काम कर रहे हो। इट्स लाइक यू आर लर्निंग हाउ टू स्विम इन द स्विमिंग पूल, यू आर नॉट लर्निंग हाउ टू स्विम इन द एक्चुअल सी। तो आपको सी के बजाय स्विमिंग पूल दिखाया जा रहा है, और तो बोल रहे हो पर सर स्विमिंग पूल में अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है तो फिर उस केस में डोंट वांट अ जॉब ओवर देयर। आपको सी में जॉब मिलेगा, स्विमिंग पूल में जॉब नहीं मिलेगा। तो केस स्टडी अप्रोच इज रिडंडेंट। डू यू थिंक हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड और कॉर्नेल में केस स्टडी अप्रोच से फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाया जा रहा है? इफ यू थिंक सो प्लीज डबल चेक, इट्स गॉन। अब बी स्कूल्स ने केस स्टडी अप्रोच छोड़ दी है, बिकॉज केस स्टडी अप्रोच हाइपोथेसाइजेस द रियल लाइफ। ठीक है, तो अगर मैं दोनों का आपको दिखाऊं यहां पे क्या हिसाब किताब है, लेट मी शो यू। एक्स वाई जेड लिमिटेड का ये रहा एक्स वाई जेड लिमिटेड का, ये है, देखो ये एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया। इट्स एन इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स ब्ला ब्ला ब्ला। उसका हिस्टोरिकल कितना सुंदर लग रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। उसका इनकम स्टेटमेंट दे दिया, उसका बैलेंस शीट दे दिया, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दिया, उसका फोरकास्ट दे दिया, और उसके बाद ये रहा फोरकास्ट। देखो वाटर प्यूरिफायर का क्या ग्रोथ होगा, सेलिंग प्राइस क्या ग्रोथ होगा, किचन अप्लायंस क्या ग्रोथ होगा, सेलिंग प्राइस क्या ग्रोथ होगा, अजम्पशन दे दिया, ग्रॉस मार्जिन क्या होगा, एम्प्लॉय एक्सपेंस क्या होगा। मैंने मजाक हो रहा है, ये सारा का सारा अजम्पशन दे दिया और आपको बोल रहा है फाइनेंशियल मॉडल बनाओ, और आप बोल रहे हो कि मेरे को फाइनेंशियल मॉडलिंग आता है। दे विल नॉट एक्सेप्ट यू। नो सेल साइड, नो बाय साइड, नो इन्वेस्टमेंट बैंक इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस बुलशिट। ठीक है, लेट मी शो यू द अदर वन जो हमने किया था 96 टू 99। तो 1996 से 1999 के बीच में मैं एमएस फाइनेंस कर रहा था। एमएस फाइनेंस, व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन एट सेंट जेवियर्स, आई वाज परस्यूइंग अ प्रोग्राम कॉल्ड एमएस फाइनेंस। और उस एमएस फाइनेंस में इस तरह की स्टडी आता था, एसआर शिपिंग का पूरा बैकग्राउंड, इंडस्ट्री का सेटिंग, उसका पीएल, उसका बैलेंस शीट, ओके, और उसके बारे में डिटेल्स, और डिटेल्स देके हम लोग को बोलता था उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाओ। ठीक है, तो इसमें कम से कम ये इज्जत थी कि एक्स वाई जेड के बदले एसआर शिपिंग आ गया। पर क्या एसआर शिपिंग का इतना सिंपल सा पीएल बैलेंस शीट होता है? पागल हो जाएंगे। एक वर्कशीट ऐसा नहीं होता उसका, एक माने एग्जिबिट वैसा नहीं होता है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फुल फाइनेंशियल मॉडल। तो ये गंदगी चल रही है, एंड दिस इज नॉट हैपनिंग अब्रॉड, एंड देयरफॉर नोबडी फ्रॉम अब्रॉड इज डूइंग फाइनेंशियल मॉडलिंग फ्रॉम इंडिया। आस्क योर फ्रेंड्स, कोई हो गए बाहर में तो, कि क्या तुम फाइनेंशियल मॉडलिंग यहां से पढ़ रहे हो? नॉट पॉसिबल, बिकॉज को पता है फाइनेंशियल मॉडलिंग माने रियल कंपनीज से करना है। तो रियल कंपनीज में सर कैसे समझेंगे रियल कंपनीज को? तो रियल कंपनीज को समझने के लिए मैंने कॉइन किया था तरीका। ओके, दिखा रहा हूं मैं, एक बार मैं एक्सेल शीट पे ले जा रहा हूं आपको, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी टेक यू टू द एक्सेल शीट। सो रियल कंपनीज के लिए क्या करना पड़ता है? रियल कंपनीज के लिए हमने ऊपर में ही बिजनेस मॉडल जो था ना, ऊपर जाना, बिजनेस मॉडल, उसके अंदर राइट साइड में मेंटल मॉडल फ्रेमवर्क्स, मेंटल मॉडल फ्रेमवर्क्स बना दिया था। मेंटल मॉडल फ्रेमवर्क्स क्या होता है? मेंटल मॉडल फ्रेमवर्क्स को क्या अलग से एक शीट में दिखा सकते हैं? मेंटल मॉडल फ्रेमवर्क्स को अलग से एक शीट में दिखा रहा हूं कि स्टूडेंट ये बोलता है कि सर भारत में करीब 4,000 5,000 स्टॉक्स लिस्टेड है, हर एक स्टॉक का एक कहानी है, एक स्टोरी है। हम ऐसे कैसे जानेंगे? इंटरव्यू टेबल में वो किसी भी कंपनी के बारे में पूछ लेगा तो मैं कैसे बताऊंगा? इंटरव्यू टेबल में अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में पूछ लेगा, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आपको उस कंपनी का पता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपको थॉट प्रोसेस है, आप बोल सकते हैं कैसे सोचना है। ही इज वांटिंग टू सी वेदर यू नो हाउ टू थिंक अबाउट द कंपनी। तो मेंटल मॉडल्स में एक हो गया एसेट इंटेंसिव मॉडल। एसेट इंटेंसिव मॉडल
जो टाटा मोटर्स का था, जो सीमेंट कंपनी का होता है, ठीक है, जो टाटा मोटर्स का था, जो सीमेंट कंपनी का होता है, जहां हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, एसेट इंटेंसिव मॉडल, ठीक है। तो फिर इफ यू कम टू एसेट लाइट मॉडल, तो एसेट लाइट मॉडल जो है प्लेटफॉर्म कंपनीज का होता है। ओके, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, अभी किसका आईपीओ आ रहा है? जेप्टो का। तो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, ओके, उनका। उसके अलावा आईटी कंपनीज का, जो लोग पीपल पे खेलते हैं, आईटी कंपनीज का, ठीक है। तो एक तो प्लेटफॉर्म हो गया, एक पीपल हो गया, पीपल बिजनेस, नीचे लिखो पीपल बिजनेस एसेट लाइट में, कि प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, पीपल के बेसिस पे, और या फिर ब्रांड के बेसिस पे। सर अगर एसेट लाइट है, बिजनेस में एसेट्स नहीं लगा रखे हैं, तो कैसे कमा रहे हैं? या तो प्लेटफॉर्म से, या पीपल से, और या ब्रांड से। राइट ऑन ब्रांड। ओके, ब्रांड से कमा रहे हैं। एप्पल, हाउ इज एप्पल अर्निंग? मेनली बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड। ओके, एप्पल के नॉट बी कंपेयर टू इन्फोसिस की पीपल बिजनेस नहीं है, इट्स लाइक अ ब्रांड बिजनेस। तो एसेट लाइट मॉडल, ठीक है। उसके बाद वी गो टू फिजिकल फुटप्रिंट वाला मॉडल, फिजिकल फुटप्रिंट, D2C, फिजिकल फुटप्रिंट। इसमें आ गया अपना पीवीआर आइनॉक्स, इसमें आ गया अपना स्टारबक्स, इसमें आ गया अपना जुबिलेंट फूड वर्क्स, ठीक है, जहां पे इतने सारे स्टोर्स है उनके, और वो पर स्टोर के ग्रोथ के बेसिस पे सब फोरकास्ट होता है। तो फिजिकल फुटप्रिंट वाला मॉडल हो गया, ठीक है। तो इस तरह मेंटल मॉडल बना देते हैं। अब हजारों कंपनीज फॉल इनटू दीज फ्रेमवर्क्स। तो आपको पता होगा टाटा मोटर्स में हम कैपेसिटी देखेंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे, ठीक है, एबिडा पर टन देखेंगे, रेवेन्यू पर टन देखेंगे, कैपिटल स्पेंडिंग देखेंगे, एसेट यूटिलाइजेशन देखेंगे। यू नो द क्वेश्चंस, एंड दैट इज व्हाट ही इज वांटिंग टू लिसन फ्रॉम यू। वही वो सुनना चाह रहा है। तो हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्स में कंपनी को खोला था, दैट वाज अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, उसका करीब 50 पेजेस का स्टडी मैट डिजाइन किया था। 50 पेजेस का स्टडी मैट, स्टडी मैट बोला मैंने, रिसर्च रिपोर्ट नहीं बोला, बिकॉज स्टडी मैट हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जिसमें हम लोग ये बताना चाहते हैं कि यार तुम्हारे लैंग्वेज में तुम समझो ये कैसे किसी कंपनी को, ठीक है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को इसमें क्या बोलते हैं, फिजिकल फुटप्रिंट में पीवीआर आइनॉक्स को खोला था, प्लेटफॉर्म बिजनेस में अर्बन को खोला था, और नए नए कंपनीज को और ऐड करते जा रहे हैं। So we have not done financial modeling with the help of hypothetical companies. We have done financial modeling with the help of real companies. And real companies का mental model से क्या होता है? कॉलम नंबर बी में लिखो, you get to know the KPIs. You get to know the KPIs. आपको KPIs पता चल जाता है। सर KPIs क्या हुआ? KPIs वही हुआ जिससे आज का सेशन स्टार्ट हुआ था, जब मैं पूछ रहा था ना, रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर कौन से इंडस्ट्री में? आपने बोला इंडिगो में। जब मैं पूछ रहा था सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कौन से कंपनी में? आपने बोला डी मार्ट में। याद है? तो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स वही होता है कि कौन सा ऑपरेटिंग मैट्रिक्स, धंधे का चीज जो काम आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल से धंधा नहीं चलता है, ऑपरेशन से फाइनेंशियल आता है, कि ऑपरेशन से रेवेन्यू आएगा, ऑपरेशन से सीओजीएस आएगा। जब तक आपने ऑपरेशंस नहीं समझा, आप क्या फाइनेंशियल फोरकास्ट करोगे? एंड व्हाट पीपल आर डूइंग, प्लीज शो इन अ फोर्थ शीट। एक बार सेल्स लिख दो, सेल्स, सेल्स लिखो ना, सेल्स, कंपनी का सेल्स। हाँ, और नीचे ईयर्स लिखना, 2020, 2021, 2022 एंड सो ऑन 2025 तक। ओके, ये सेल्स है। सेल्स का फिगर लिख रहे हैं अपने, लेट्स राइट डाउन 42,000। 42,000 मन से चेंज कर दो जो मन करे। 47,000, 50,000, 51,000, 49,000, 58,000। ये सेल्स है। ये कंपनी का सेल्स ऑफकोर्स बहुत क्लीन दिख रहा होगा। अब लोग क्या करते हैं, आगे का फोरकास्ट करने के लिए इसी का ट्रेंड मार देते हैं। या तो इसका सीएजीआर निकाल लेंगे, निकालो सीएजीआर, इसका सीएजीआर निकाल रहे हैं। 58,000 डिवाइडेड बाय 42,000 होल टू द पावर 5, पावर 1/5, द होल थिंग -1, द होल इनटू 100। तो इन दैट केस दिस इज कमिंग टू 7%, 6.67%। तो ये 6.67% आया। तो आप क्या करोगे, 2026, थोड़ा एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़, हाँ, 2026, 58,000 इंटू 1.0, 58,000 ब्रैकेट 1 प्लस दिस। ये चल रहा है धंधा। और अगर इस तरह से कोई सोचता है वो कमा पाएगा,
या कोई उसको जॉब दे देगा तो ठाकुर तो घियो, बिलीव मी। या इसका जानबूझ के चार्ट बनाए थे, इसका टाइम सीरीज, कोई कोई ने बचपन में टाइम सीरीज किया होगा। ईयर्स हो जाता है एक्स, सेल्स हो जाता है वाई, ट्रेंड लाइन सुना हुआ है, सेक्युलर ट्रेंड, सिक्लिकल फ्लक्चुएशन, सीजनल फ्लक्चुएशन। तो इसका ट्रेंड लाइन बनाए तो इसको फोरकास्ट कर देंगे। मैंने मजाक चल रहा है कि तुम पास्ट का ग्रोथ को फ्यूचर ग्रोथ पे एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे। पर पुलकित जो स्टूडेंट था ना, आई थिंक पहला एक स्टूडेंट विराज था, फिर पुलकित था। पुलकित ने एक बात बोला था, जानते हो क्या? पुलकित ने बोला, सर अगर एक मेच्योर्ड कंपनी है, यानी कि सपोज मेरा एज, इफ आई एम 49 ईयर्स ओल्ड, मेच्योर्ड इंडिविजुअल है, तो सर उसका पास्ट का देख के भी फ्यूचर का फोरकास्टिंग काफी हद तक हो सकता है, ठीक है। बट सर अगर यंग इंडिविजुअल, आप जो 19 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड है, अगर आपका पास्ट देख के, ठीक है, कोई फ्यूचर फोरकास्ट कर रहा है तो इट इज स्टुपिडिटी। तो इससे पता चलता है पुलकित ने कितना बड़ा बात बोल दिया। ही सेड अबाउट कितना इंपॉर्टेंस पास्ट को देना चाहिए, ठीक है। तो जो मेच्योर्ड कंपनी उस पर पास्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। जो यंग कंपनी है, यंग टेक कंपनी है, जहां ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, वहां पास्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। इट इज इन अ स्टेट ऑफ डायनामिज्म। आप लोगों में से बहुत जन का मन है प्राइवेट इक्विटी में जाने का, और प्राइवेट इक्विटी में दो पार्ट होता है, एक तो एलबीओ वाला पार्ट होता है, एक होता है वेंचर कैपिटल। सो मेनी वेंचर कैपिटल फंड्स आर कमिंग इन इंडिया। यू वांट अ जॉब इन वेंचर कैपिटल एंड यू डू दिस स्टफ, इफ दैट गिव यू दिस स्टफ एंड यू डू दिस स्टफ, बिलीव मी यू आर आउट ऑफ द डोर। सीधा गेट के बाहर निकाल देगा आपको, कोई हालत में एंट्री नहीं मिलेगा। यू कांट गेट इनटू देम। So past ka extrapolation, there was a Russian dialogue. You know what? If you forget the past, you may make a mistake. If you forget the past, you may make a mistake. May. If you focus only on the past, if you use only the past, you will definitely make a mistake. No matter कितना ही matured company. तो पास्ट का एक्स्ट्रापोलेशन हमने नहीं कराया क्लास में। देखते जरूर है पास्ट का ग्रोथ रेट क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परसेंटेज ऑफ सेल्स क्या था, बट वी गो इनसाइड द ड्राइवर्स अनलेस रेंटल बहुत छोटा सा आइटम है जो इरेलेवेंट है, और उसके हेल्प से फोरकास्टिंग करते हैं। वी यूज एआई ब्रिलियंटली बिकॉज वी बिलीव दैट द ओल्ड जूनियर एनालिस्ट इज गॉन। प्लीज राइट डाउन दिस, ओके। द ओल्ड जूनियर एनालिस्ट इज गॉन, देयर इज नो जॉब। द ओल्ड जूनियर एनालिस्ट, ओल्ड को कैपिटल, the old junior analyst is gone. Okay. Industry demands AI augmented junior analyst, AI augmented junior analyst who has in-depth understanding of different mental model frameworks. कोई भी कंपनी का उसको पूछो, वो बता देगा उस कंपनी को खोलना कैसे, उसको तरीका आता है। वो कंपनी के बारे में नहीं जाना होगा। यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू, somebody ask you a question about a mining company, ओके, संदूर मैंगनीज, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने नाम ही नहीं सुना है, आपने संदूर मैंगनीज का नाम ही नहीं सुना है, बट जैसे ही आपने सुना मैंगनीज, यू अंडरस्टूड इट्स अ माइनिंग कंपनी, and therefore your thought process started and you told that let me collect my thoughts. I think सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना इंटरव्यू का, ये होना चाहिए, सर give me 2 minutes, let me collect my thoughts, and you collect your thoughts, and after collecting your thoughts you tell them that sir, this company is not under my radar, I'm not covering the company, but this is a mining company. I think if I would have started exploring the company, this is how I would go about. Okay, दिस इज हाउ आई वुड गो अबाउट। ओके, रेगुलेटरी जो प्रॉब्लम होता है माइनिंग इंडस्ट्री में, वो प्रॉब्लम कि अटका हुआ रह जाता है, यू डोंट गेट द रेगुलेटरी अप्रूवल्स, और मिल जाता है तो कैसे स्टॉक भागता है, ठीक है। तो एंड द कमोडिटी प्राइसेस का फ्लक्चुएशन, मैं जब रिसर्च टूल्स बोल रहा था तो कमोडिटी के लिए कौन से टूल्स चाहिए वो तो बताया ही नहीं, ठीक है। कमोडिटी के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं ग्लोबली, इंडिया में, ठीक है। तो दिस टू मच। बट हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग में एक चीज बता दूं वेरी क्लियरली, फाइनेंशियल मॉडलिंग वी हैव नॉट स्टॉप्ड ओवर देयर बिकॉज वी बिलीव दैट, फॉर एग्जांपल सर इतने सारे कंपनीज है, कौन से कंपनी को स्टडी करना चालू करें बताइए ना, जिसमें पैसा कमा सके। उसके लिए स्क्रीन करना पड़ता है कंपनीज को। स्क्रीन कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग माइंडसेट क्या होता है, कंपाउंडर्स कैसे ढूंढते हैं, अलग अलग सेक्टर्स का इन-डेप्थ स्टडी कैसे करते हैं, वो फाइनेंशियल मॉडलिंग में नहीं है, वो एनालिस्ट टैक में है। एनालिस्ट टैक इज द मदर ऑफ ऑल कोर्सेज। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर मी इन लाइफ, 15 मार्च 2026, जिस दिन मैंने एनालिस्ट टैक लॉन्च किया था, बिकॉज उसका फर्स्ट मॉड्यूल था फाइनेंशियल मॉडलिंग, सेकंड मॉड्यूल था इन्वेस्टिंग डीप डाइव, वहीं पे सब कुछ है। Whether you talk about the philosophy of value investors like Charlie Munger and Warren Buffett,
you talk about growth investors, you talk about quant investors, you talk about, people with different philosophy, all has been done in depth in the analyst track second वाला मॉड्यूल एंड थर्ड मॉड्यूल में तो एआई को खोल दिए एआई के ऊपर कंप्लीट डेडिकेटेड मॉड्यूल फॉर फाइनेंस कोडिंग नहीं करेंगे हम लोग बट जो भी पाइथन वगैरह काम आएगा फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंस वो किया जाएगा ठीक है सो दैट इज डन एंड फोर्थ वाला पार्ट इज दैट करियर के लिए मतलब हाउ डू आई टेल यू मैं जब 1 साल पहले 1.5 साल पहले विद्युत से मिला विद्युत इज आवर सीईओ एंड आई वाज अमेज्ड बिकॉज दिस गाय इन Xavier's at a time when everybody was doing CA CFA he did nothing no CA no CFA no FRM he just approached businesses okay and the level of way he knows that finance जब वो मिलता है ना मेरे स्टूडेंट से क्लास में वगैरह तो बोलता है सर इन स्टूडेंट्स को जॉब कैसे मिलेगा इनको जो फाइन ट्यूनिंग चाहिए वो करानी पड़ेगी तो एनालिस्ट ट्रैक में जो फोर्थ मॉड्यूल है जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड मॉड्यूल है करियर एडवांसमेंट उसमें वी विल पॉलिश द स्टूडेंट सो दैट ही गेट्स अ जॉब ही स्ट्रेट अवे गेट्स अ जॉब ओके वो तो कह रहा है एनालिस्ट ट्रैक और ये है कि सर हम लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अभी एनालिस्ट ट्रैक नहीं कर सकते सर पीस बाय पीस कर सकते हैं क्या ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मॉडलिंग करना एक चॉइस नहीं है यू डोंट हैव अ चॉइस प्लीज राइट दिस डाउन फाइनेंशियल मॉडलिंग इज नॉट अ चॉइस कि करना चाहिए क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग करना ही पड़ेगा यू हैव टू डू इट सर सीएफए कर लेंगे तो नहीं चलेगा क्या नहीं चलेगा फाइनेंशियल मॉडलिंग हैज टू बी डन कब सर अभी आप क्लास 12 पास की हो तो अभी सर मैं तो सेकेंड ईयर में हूं तो क्यों नहीं किया तो अभी एंड वो करना पड़ेगा इन द एआई ऑगमेंटेड मैनर यूजिंग रियल लाइफ केस स्टडीज एंड फोकसिंग ऑन इंडस्ट्री डीप डाइव लिखो एंड यू हैव टू डू इट द करेक्ट वे यू हैव टू डू इट द करेक्ट वे का मतलब क्या हुआ रियल कंपनीज एआई ऑगमेंटेड डीप इंडस्ट्री रिसर्च सो व्हाट अबाउट एक्सेल अरे एक्सेल तो बट अ गिवन है कोई तुमसे पूछेगा कि तुमको एबीसीडी आता है क्या अरे एबीसीडी तो आना ही चाहिए ऑब्वियसली आना चाहिए सर मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं मेरे को एक्सेल नहीं आता है एक्सेल का सेशंस है ठीक है तो वी हैव पॉइंट अ मेथोडोलॉजी कॉल्ड फॉर्ज एक नया शीट पे लिखो ना मैंने एक बार कम्युनिकेट करने के लिए फॉर्ज मेथोडोलॉजी लिखा है फॉर्ज बड़ा भी लिखना टीचिंग पैडागॉजी राइट डाउन टीचिंग पैडागॉजी फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग by Sanjay sir. Teaching pedagogy for financial modeling by Sanjay sir. अपने आप को सर बोल रहे हैं मेरे को तो लगता है मेरा टाइटल सराफ है ही नहीं सर ही है मेरी वाइफ भी मेरे को सर बोलती है ठीक है गॉड नोस चलो तो पहला स्टेप हो गया स्टेप 1 फाउंडेशन फाउंडेशन में मैंने क्या बोला धंधे का अंडरस्टैंडिंग देखो धंधे का अंडरस्टैंडिंग ओके धंधा लिखा गया धंधा DHA हाँ धंधे का अंडरस्टैंडिंग उसके अलावा एक्सेल का अंडरस्टैंडिंग उसके अलावा एआई का अंडरस्टैंडिंग उसके अलावा सोर्स डॉक्यूमेंट्स का अंडरस्टैंडिंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो विराज बोल रहा था उसके अलावा सारे टूल्स का अंडरस्टैंडिंग रिसर्च टूल्स मास्टरी कि आपको ब्लूमबर्ग S&P कैपिटल IQ सब चीज का एक्सपीरियंस दैट इज फाउंडेशन स्टेप 2 इज फॉर्ज का स्टेप 2 क्या हो गया ऑपरेटिंग मॉडल में एक्चुअल रियल कंपनीज फाइनेंशियल मॉडल created taking the help of AI for the purpose of feeding in the source documents and for the purpose of analysis and for the purpose of templating मतलब टेम्पलेट बनाने में एक्सेल सजाने में हम अपना प्रेशियस टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आपने एक्सेल सीख लिया दैट्स ओके पर टेम्पलेट जो है क्लॉड बनाएगा नोटबुक LM में सारा सर्व करेंगे ठीक है तो और एनालिसिस करेंगे जीपीटी के हेल्प से कि ये चीज नहीं समझ में आई ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आई ये वाटर प्यूरिफायर क्या होता है नहीं समझ में आया इसका क्या टैम है टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है इंडस्ट्री में क्या बात चल रही है ग्लोबल प्रैक्टिस क्या चल रहा है इस कंपनी में कुछ कांड हुआ है क्या ठीक है वो सारा का सारा स्टेप 3 तो ये हमने किया है कौन कौन से कंपनीज के लिए अभी तक ये किया है हमने ऑपरेटिंग मॉडल के नीचे लिख दो ना वी हैव डन इट ठीक है वहां लिख दो राइट साइड में PVR Inox तो दैट्स अ फिजिकल फुटप्रिंट वाला बिजनेस वी हैव डन इट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट
UltraTech Cement is asset heavy, capital intensive business. We have done it for Urban, which is a platform business. Urban, which is a platform business. I discussed IHCL. Then I also discussed Indigo. Some of these sessions are there on YouTube. IHCL का Indigo का सुनो तो सही और समझ में आएगा, ठीक है? And you'll understand क्या financial modeling हम लोग करा रहे हैं different as compared to Excel sheet going on. Step 3 Forge में are report writing and thesis construction. And thesis construction आप report कैसे लिखोगे? Because you have to write the report. PPT में भी आपको presentation देना पड़ेगा, आपको report लिखना पड़ेगा. How would you write a research report? That is report writing and thesis construction. Okay. Step 4 is, sir, आप जो बोल रहे हो ऊपर अगर मैं समझ नहीं पाया तो मेरे को दिक्कत हो गया तो आई एम अ स्लो लर्नर. मैं अभी भी क्लास 12 दिया और मेरे को धंधे का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. सर बताइए ना, हाउ विल आई डू इट? गाइडेड सपोर्ट सेशंस. तो गाइडेड सपोर्ट सेशंस में अलग से हैंड होल्डिंग सेशंस होता है. इसका मतलब धीरे धीरे आओ साथ में अपने प्रेस करते हैं कमांड सी मारे कंट्रोल सी कंट्रोल बी, तो अपने धीरे धीरे एक्सेल करते हैं. वो सेम चीज जो मेन क्लासेस में हुआ है उसको धीरे धीरे करते हैं, ठीक है? तो एक एक आइटम को एक्सप्लोर करते हैं. वी कीप ऑन डूइंग इट एंड ओपनिंग इट आउट. लोगों को बहुत फायदा हुआ है ये सपोर्ट सेशन से. तो सपोर्ट सेशंस अभी जैसे 19 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा तो संडे सपोर्ट सेशंस होगा, और बहुत सारे सपोर्ट सेशंस हो गए जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है? तो गाइडेड सपोर्ट सेशंस वाज द किलर, बिलीव मी, बिकॉज देर आर सम इंडस्ट्री पीपल हु आर अटेंडिंग, उनको ऑलरेडी गाइडेड सपोर्ट सेशन चाहिए नहीं, बट देर आर सम यंगस्टर्स हु आर अटेंडिंग, उनको गाइडेड सपोर्ट सेशन चाहिए. ओके और उसमें गाइडेड सपोर्ट सेशन में भैया लोग सिखाएंगे, यानी दोज हु हैव स्टडीड विथ मी 4 साल पहले 5 साल पहले, वर्किंग इन सम कंपनीज एंड ऑल दैट, दे आर द वंस हु टेक द गाइडेड सपोर्ट सेशंस. और बहुत ही खुल के लेते हैं, आप खुल के पूछ पाते हो जो संजय सर को डर जाते होगे पूछने में. स्टेप 5 एंड टू एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट. बिकॉज यहां तक तो हमने किया, अब आपको तो फाइनेंशियल मॉडल बनाना पड़ेगा. यू हैव टू क्रिएट फाइनेंशियल मॉडल. किस पे? हाइपोथेटिकल कंपनी में? नो, यू हैव टू मेक इट ऑन रियल कंपनीज. तो कंपनीज का जो ऑप्शन दिया हुआ वो नेस्ले का ऑप्शन दिया हुआ है. उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है, मैं भूल रहा हूं व्हाट वाज द ऑप्शन, जुबिलेंट फूड. तो जुबिलेंट फूड फिजिकल फुटप्रिंट वाला हो गया, ठीक है? नेस्ले ब्रांड पे खेल रहा है. मारुति, ठीक है? एंड चौथा कंपनी जो दिया हुआ था इटर्नल, जोमैटो. तो इन चारों कंपनी पे आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाना है. और जब आप ये फाइनेंशियल मॉडल सबमिट करोगे, बना के सबमिट करोगे, और इसका सारा सोर्स डॉक्यूमेंट हमने सप्लाई कर दिए और सबमिट करोगे आप, तो इन दैट केस हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, आपको गोल्ड मॉडल शेयर करेंगे. ओके इसका गोल्ड मॉडल शेयर करेंगे, माने हमारे ख्याल से बेस्ट मॉडल क्या है और उसको इवैल्यूएट करेंगे. ऑफकोर्स ये पूरे चीज में मैं वैल्यूएशन तो बोलना भूल ही गया कि फाइनेंशियल मॉडल बना के, डीसीएफ करके, कॉम्स एनालिसिस करके, सिनेरियो एनालिसिस करके, फुटबॉल फील्ड एनालिसिस करके वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है? तो फाइनेंशियल मॉडलिंग करके इन सब का वैल्यूएशन हुआ. ऊपर जाना, इन सब का वैल्यूएशन हुआ. पीवीआर का वैल्यूएशन, अल्ट्राटेक का वैल्यूएशन, अर्बन का वैल्यूएशन. बिकॉज वैल्यूएशन से पता चलता है इज इट अ बाय और अ सेल, क्या उसको बाई करना चाहिए क्या. तो फाइनेंशियल मॉडलिंग जो मैं करवा रहा हूं, ओके, और जो मैंने कवर किया है वो, मतलब why is it that I had to step into it? Because मैं तो already occupied हूं. I had to step into it because I find that मैंने करीब, मैंने I will not tell you 70-75 interviews लिए of people who are teaching financial modeling in the industry, and I could not find that anybody is doing the service. Excel sheet लेके बैठ जाएगा सामने, बोलो कैसे आया? नहीं, आपको खड़ा कर दिया जाएगा to explain your financial model and you will not be able to, because you don't know the matrix, you don't know the business model, you don't know the story of the company. So please understand, financial model is a necessity. जो लोग अभी क्लास 12 पास किए, सीएफए करो या मत करो, एफआरएम करो या मत करो, सीए करो या मत करो, फाइनेंशियल मॉडलिंग जरूर सीख लो. एंड नॉट द ओल्ड वे बट द न्यू वे. यू कैन अंडरस्टैंड, मेरा जैसा पर्सन जो उस समय, मतलब 96 से 99, जब 96 से 99 में ये ओल्ड वे से सीखा था, ये ओल्ड वे से आप वैसे सीखोगे? विल यू लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग द वे आई लर्न बैक इन 99? डू यू थिंक द वर्ल्ड इज स्टेइंग ओवर देयर? डू नॉट डू दैट.
स्क्रीनर से लोग फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, स्क्रीनर से। तो स्क्रीनर से फाइनेंशियल मॉडल अगर बनाओगे तो स्क्रीनर में तो केपीआईज नहीं है, लिखो प्रॉब्लम विद स्क्रीनर, प्रॉब्लम विद स्क्रीनर, प्रॉब्लम विद स्क्रीनर। नंबर वन, पहला प्रॉब्लम, उस पे केपीआईज नहीं है, नो केपीआईज। दूसरा प्रॉब्लम, उसमें some detail items are not there, okay, multiple details are missing, like accounts payable। अकाउंट्स पेबल बताता ही नहीं है, तो मैं कंपनी का वर्किंग कैपिटल का फोरकास्ट कैसे करूंगा? ठीक है। तो और कुछ लोग तो हाइड्स कर रहे हैं, वहां पर नीचे लिखो, सम पीपल आर यूजिंग क्लॉड टू मेक द एंटायर मॉडल, सम पीपल आर यूजिंग क्लॉड टू मेक द एंटायर मॉडल, क्लॉड को डाल दे रहे हैं, प्रिपेयर अ फाइनेंशियल मॉडल ऑन जेप्टो, अभी अभी डाल देना, ओके, प्रिपेयर अ फाइनेंशियल मॉडल ऑन जेप्टो, और क्या सुंदर मॉडल क्लॉड बनाएगा, बिलीव मी, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है, जिसके बेसिस पे पैसा लगा दो तुम्हारा दम है तो। बैलेंस शीट टैली होगा नहीं, जबरदस्ती टैली किया हुआ है, और कोई भी एजम्पशन हे वायर है, पूरा हेल्यूसिनेट किया हुआ है। एसएससीआई ने भी जब अभी मार्च या अप्रैल में क्लॉड का नया नया वर्जन आया था ना फाइनेंशियल मॉडलिंग का, तो एसएससीआई ने भी वीडियो रिलीज किया था, शुभकांत सर ने रिलीज किया था कि क्लॉड से फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाएंगे, एक बार दिखाने के लिए कि दुनिया कहां चली गई है। अगर आप एक्सेल सजा रहे हो तो नहीं चलेगा, यू हैव टू नो द इन डेप्थ ऑफ द बिजनेस। ठीक है। नाउ गिवन द इंटायर थिंग जो मैंने बोला है, and I will open the session for doubts. Okay, you can ask your doubts, please. I'm going to the participants and let me see who wants to ask doubts. विराज, आपको मौका मिल गया, सबका डाउट्स तो यहाँ हैंडल हो भी नहीं पाएगा। लेट मी गो टू सम फीमेल, एक भी फीमेल को मौका नहीं मिला। आई कांट सी हैंड्स रेज्ड। राहुल का है, कुश का है, कोई फीमेल? And I always believed that females are the best when it comes to investing. Believe me, from the core of my heart, I have seen. But why do females think that they cannot? Very strange. Anyways, let me go to Bharat Punjabi. Yes, Bharat, you are a level 2 student. Good evening, sir. Good evening, Bharat. I call you Bharat or Bharat? सर भरत। Bharat. Okay, Bharat. Tell me. सर जैसे मेरा एक डाउट है सर, जैसे मैं अभी रिसेंटली सर ट्राई कर रहा था नेस्ले पे फाइनेंशियल मॉडलिंग, मतलब समझने का, एंड देन आई विल मेक अ मॉडल। सो आप सर थोड़ा सा एक लाउडली प्रॉब्लम। बोलोगे भरत, थोड़ा सा लाउडली। ओके सर। तो सर मैं जैसे क्या कर रहा था सर, आई आप वाज। नेस्ले पे फाइनेंशियल मॉडल बनाने का आ, वो कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, यस। यस सर। सो सर एक प्रॉब्लम जैसे मेरे को ऐसे मिली है, लाइक आई फील टू प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम इज सर, नेस्ले के कॉन कॉल सर कहीं नहीं मिल रहा सर। लास्ट उनका जो कॉन कॉल है ऑन Feb 25। सो सर उसको मैं कैसे डील करूँ, लाइक ऐसी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते हैं जब कभी हम फेस करते हैं जिसमें कॉन कॉल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सो दो चीजें हैं भरत। एक तो ये जो पर्पस ऑफ दिस सेशन है, ये पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, ओके, इफ वी गेट इनटू दैट। बट यस, हैविंग सेड दैट, तुमको अगर कॉन कॉल नहीं मिल रही है नेस्ले की वगैरह, दैट इज सो स्ट्रेंज, पता नहीं क्या बेवकूफ़ी हो रही है। बट आई विल इंश्योर दैट एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमने जो शेयर किया था उसमें 2025 तक का शेयर किया था क्या? सर वो तो आइडिया हमने नहीं है शेयर सर। किया है सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग फाइनेंशियल मॉडल। वी हैव शेयर्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट, तो यू हैव नॉट चेक्ड परहैप्स। तो आफ्टर द क्लास लेट मी आस्क माय टीम टू वंस अगेन शो इट टू यू कि कहाँ पे चारों कंपनीज के सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो बाय द वे, भरत पंजाबी इज अ स्टूडेंट, आई थिंक, हु इज डूइंग एनालिस्ट ट्रैक विद अस, एंड अकॉर्डिंगली वो कैपस्टोन प्रोजेक्ट पे पहुंच गया है, और वहां पे वो प्रॉब्लम बता रहा था, तो मैं उसकी प्रॉब्लम अलग से टैकल करूंगा। अभी अपने किसी और स्टूडेंट में जाते हैं। यस, सो आई विल गो टू यश ललवानी। So, यस sir, यश, good evening, sir. गुड इवनिंग यश। Uh, So basically, my question was, sir, like you had said that AI has been taking like a lot of jobs recently as well. That 100%. is to see. So do you think with the help of AI, is it possible to create a chatbot or some of some sort
to like attack to this financial modeling का full thing, like it sees to everything that we I as know, I humans. know, I know what are you coming to. तो let me tell you one thing. मैं अभी नाम रिवील नहीं करूंगा, अभी आई विल नॉट रिवील, बट यू नो दैट इन केस यू फॉलो मी अ लिटिल और यू नो अबाउट मी, कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में है, शायद आप जानते होंगे। तो देर इज़ अ पर्टिकुलर थिंग वी आर रनिंग कॉल्ड इंडिया AI चैलेंज, और जिसमें हमने क्या किया, 25 लाख 25 लाख इन्वेस्ट किया है, और उसमें पूरा का पूरा डिसीजन जो है ना बाई सेल का, वो AI ले रहे हैं। माने इट्स AI विच इज टेकिंग द डिसीजन, सोशल मीडिया से ट्वीट्स उठा रहा है, ठीक है, कंपनीज के बारे में, और सारा इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसके हेल्प से कर रहा है। सो व्हाट यू आर हिंटिंग एट कि सर चैटबॉट क्रिएट करके एंड ऑल दैट, दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन डेफिनेटली। देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट पीपल आर एक्सप्लोरिंग दैट वेदर AI कैन also do the thinking part, but the main माने मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड द स्टफ दैट, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेयर एंटरप्राइजेज है, उसका जो टोन था वो था डिफरेंशियल इंसाइट्स। तो इट इज, जो डिफरेंशियल इंसाइट्स है ना, वो कंपनी के मैनेजमेंट को मीट करके मिलती है, वो एक्सपर्ट्स को मीट करके मिलती है। जैसे आप अल्फा सेंस है, अल्फा सेंस को एक बार रिसर्च करना इस सेशन के बाद, यू विल फाइंड दैट अल्फा सेंस का जो मिनिमम पैकेज है ना वो करीब 10 लाख का है। तो कंपनीज लोग 20 लाख 30 लाख 40 लाख का पैकेज अल्फा सेंस का लेते हैं, पता है क्यों? जिससे अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कोई ड्रग निकाली है और उसका पेटेंट के लेवल पे ड्रग जा रहा है, क्या वो ड्रग सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसके लिए एक्सपर्ट से बात करते हैं। तो 1 घंटे का बात करते हैं, वी हैव टू कफ आउट रफली 30-40 थाउजेंड ऑफ क्रेडिट्स किल हो जाते हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये लोगों से मिलना, बात करना, इंडस्ट्री से मिलना, मैनेजमेंट से मिलना, दिस इज समथिंग विच AI विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस। बट यस, सोशल मीडिया पे विच वॉज द ऐप जो सोशल मीडिया का ट्वीट्स पकड़ लेते हैं, वैल्यू पिक, वैल्यू पिक, picker, value picker is a particular tool which we teach in analyst track, जो कि सोशल मीडिया पे उस कंपनी के बारे में जो लिखा जा रहा है ना, वो भी पकड़ लेते हैं, एंड दे डू मशीन लर्निंग ट्रांसलेशन ऑफ दैट। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट a lot can be done with the help of AI. I do not belong to the school of thought that sir AI should not be used. It hurts intelligence. It's like saying that, मेरे को याद है मैंने कुछ लोग होते थे हम लोग के पहले, जो लोग बोलते थे, जानते हो इस आदमी को सबका फोन नंबर याद है, 9831092413, 9830023636। तो फोन नंबर याद है तो क्या कैलिबर का काम है? क्या फोन नंबर याद करके काम चलेगा? तो वैसे ही अगर कोई आपको बोलता है कुछ मत टच करो AI और चलो मॉडल बनाओ, दैट्स नॉट डन। तो आई एम गेटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि चैटबॉट बना के कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, बट इफ यू आस्क मी, क्या 100% ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन जजमेंट और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग वो रिप्लेस हो पाएगा? इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। तो इफ यू आर अ फ्रेशर एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री, you should not be pessimistic towards the industry per se. Pessimism is towards those people who are learning the old way, who are not willing to think, जो ब्रेन को यूज नहीं करेंगे, AI को यूज नहीं करेंगे, उनका दिक्कत होगा। So I just wanted to know it कि could we take some help or the other from like AI? Because आप जैसे बोले ना सर, क्योंकि मैंने भी लाइक कॉलेज का 1-2 प्रोजेक्ट किया, तो उसमें हम लोग को भी बोला था कि कंपनीज उठाओ, कंपनी का बैलेंस शीट उठाओ, उसके ऊपर तुम लोग को पूरा कहते हैं बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग, यू हैव टू क्रिएट योर ओन, you don't have to pick it up from anything. So we all as students we were using AI because it's a very new thing for us also. करेक्ट। तो उसमें सर आप अगर ह्यूमनली अगर आप बाद में जाके चेक करेंगे तो या डेफिनेटली देयर वर सम इश्यूज। तो आई जस्ट वांटेड टू चेक क्लैरिफाई करने के लिए कि इज देयर एनी वे दैट, हाँ ऑब्वियसली द ह्यूमन थिंकिंग पार्ट कैन नॉट गो अवे, बट इज देयर एनी वे कि सर्टेन थिंग्स पे कुड वी टेक हेल्प फ्रॉम एआई व्हिच विल बी बेनिफिशियल फॉर अस इफ हंड्रेड वी आर परसेंट 100%। ट्रेडिंग और समथिंग? आई जस्ट वांटेड टू नहीं क्लैरिफाई नहीं, ऑन दिस। 100%, बिकॉज मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, एक कोई भी एक कंपनी को पकड़ना, जैसे मैंने संधू मैंगनीज बोला, अब उसका जो प्रोडक्ट दिया रहेगा ना, और उसका जो प्रोसेस होता है बाय विच बने पूरा प्रोसेस से जिससे माइनिंग होता है, तुम ऑर्डिनरली समझ नहीं पाओगे, यू विल नॉट। तो आप क्या करोगे? आप AI का हेल्प लोगे और उसको बोलोगे एक्सप्लेन टू मी द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। अगर AI का हेल्प नहीं लोगे, इट इज नॉट डन। 100% you should use, and the school का college का projects that you are saying, माने believe me, I have been judging events like anything in this regard,
एंड पहले जो इवेंट्स में लोग मॉडल प्रेजेंट करते थे और आजकल जो प्रेजेंट कर रहे हैं, आजकल तो कितना सुंदर मॉडल्स लोगों का होता है, बट व्हेन दे स्टैंड एंड प्रेजेंट देयर मॉडल्स, दे आर नॉट एबल टू डिफेंड अ सिंगल थिंग। दे नो, सामने सामने दिख जाता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, क्लॉड में डाला है, मॉडल निकाल दिया है। आजकल तो कॉलेज का कंपटीशन उस लेवल पे आ गया। Yes, sir. True. ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट यू यश कि एक दो सेशंस जो है ना, जो है ऑलरेडी, उसमें एक बार जो यूट्यूब पे है उसको वॉच करो, एंड यू विल फाइंड दैट मैं एग्जैक्टली जो बोल रहा हूं हम लोग किस तरीके से उसको ओपन अप कर रहे हैं। Got ठीक it, है, sir. तुम्हारे Yeah. क्वेश्चन का जवाब है यस, वी यूज एआई फिनोमिनली, फिनोमिनली। ठीक है ना? Got it. या Yeah. Thank ओके, थैंक यू यश। आई विल गो टू आरती। थैंक यू। यस आरती। I just had one doubt, sir. Now, like I'm a CFA level 3 student, so I just wanted to know how to align this course with my level 3, because level 3 I feel it's more like CFA exam in the sense per se, it's more like theoretical. So this is more into equity research. So during I just wanted to know how to align that and what is the correct approach actually. Correct. Perfect. I'm telling you. So yesterday, a student came to me in Calcutta. I will not take name. And the student has cleared CFA level 3. And uh, he is seeking out jobs. Unfortunately, he comes from a well-off family. I said unfortunately for a reason. And he got two job offers earlier, but then he thought not to join them. So he rejected them. And now he's not getting any jobs at all. Suddenly, एकदम dry up हो गया. I asked him a simple question. Can you create a financial model of a company? And I asked him genuinely, eye to eye, and he said no. So I said, if you complete CFA program, all the levels, and you can't create a financial model in which you can defend, in which you can speak and speak about the story of the company, believe me, the doors are closed. There is no way. And what you are saying, Aarti, about the fact that level 3 is theoretical, it's not that way. Let me explain. Level 3 is taking you to the position of the CIO, Chief Investment Officer. And just imagine, if you are the CIO of a big fund, do you think you will create a financial model? No way. You will never touch Excel. You will never create a financial model. You will be focusing on stuff like how much of the funds are to be allocated to emerging markets versus developed markets. और emerging markets में इंडिया वर्सेस ताइवान कोरिया जो चल रहा है अभी, उसमें कितना पैसा एलोकेट होगा, व्हाट इज रूपी गोइंग टू डू, यू विल आस्क योर इकोनॉमिस्ट टू सर्व यू. ठीक है, एंड टेक दोज डिसीजन. सो लेवल 3 इज अ वेरी फैंटास्टिक अफेयर. इट इज नॉट इमेजिनिंग यू टू बी गोइंग आफ्टर 10 lakh, 12 lakh, 15 lakh, 20 lakh job. We are going to multi crores. In a span of 5 years, 10 years down the road, once you complete level 3, they are imagining that in 10 years, 15 years time, you will become the chief investment officer. Okay, so I would not connect them that way. It's a deep respected program, level 3, believe me. But I would say that things start from the base. CIO तो बाद में होगा ना. We have to start from somewhere. Even if you want to get into wealth management, you want to get into investment banking, there is no opening without financial modeling. So anybody who is doing the CFA program, anybody who is doing the FRM program, anybody who is doing CA and wants to get into finance, and if it doesn't do financial modeling the AI augmented way, okay, by understanding deep dive industry ka knowledge, he is there for a negative surprise. Okay, so that's what I would like to tell you. As far as your examinations are concerned, if you are sitting in Feb 27, I think you can manage both financial modeling together with level 3. If you are sitting in this August, obviously don't do financial modeling right now. Abhi mat karo. Sit for your examinations. That's a very important examination. Money is invested, passion is invested. And uske baad you start financial modeling. Sir, just one more doubt, sir. Like I will be writing only in 2027. The problem is like how to connect level 3 practically. What is being more theoretical? Like we can understand it, but I'm exemplifying the same. I am exemplifying the same example. देके समझा I'm रहा हूँ. not saying only for this course. This Yeah, is yeah, understood. I understood the second but in question. general, I want to know rather than only studying it for. I understood, but I will answer in brief because then the question goes outside the scope of this Sure, I particular understood, session. sir. But Okay, I will definitely answer you. So
In capital market expectations, okay, there are various methods or tools by which you make forecasts. And one of the tools was, indicators based approach. Now, there they have given advantages and disadvantages. What are the advantages and disadvantages? Believe me, a person like me will not like that at all. What are the advantage and disadvantage of indicator based approach? I put that entire write up into GPT and I said that question number one, is the indicator approach being used in the industry, in the fund management industry? If the answer is yes, how is it actually used? Give me an exemplification of the same. And it created an entire exemplification of how the indicator approach is being used in the best of funds globally. So you just have to be experimental, like Yash said 5 minutes ago. Do we use AI? If you are not using AI, you are missing a lot. There's an expert sitting in front of you and you're not using their services. That is not done. Got it, sir. Okay. Yeah. Thank you. Thank Great you. speaking to you. Yeah. Yeah. So I will come to Shirala Ajmani. Good evening, sir. Good evening. So I was not able to make out a male or a female. Sorry. Did I pronounce correct? Shirala? Shirala? Shiral. Sir, it's Shiral. Shiral. Okay. Okay, it's Shiral. Okay. Yeah, please. सर आई वांटेड टू आस्क कि मैंने अभी एनएस चेक ज्वाइन किया है, तो मैं सोचा था पहले इक्विटी जो इक्विटी मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल 2 उसका पहले पूरा कवर अप करूं, उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग चलेगा। अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग के बिना इन्वेस्टिंग वाला मॉड्यूल पहले करते हो, चलेगा। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। केवल एक दिक्कत है, इफ यू आर सीकिंग एन एंट्री लेवल जॉब, if you are seeking an entry level job, you will face a problem if you don't know financial modeling. But for understanding purpose, you will enjoy the investing wala part, ठीक है, more than financial modeling. और सर जैसे मैंने अभी 12th ही क्लियर किया है अपना, तो मेरे को उतना एनालाइज करना नहीं आता कंपनीज को। मैं या taken understood. तो Shirala, are you also doing some certification program? Yes sir, CFA level 1. CFA level 1. So my advice to you is to not do the investing live sessions. I know live sessions होते हैं तो मन करता है कि live कर लें, but at a larger level, most intelligent people that I have met, they are okay with the fact that yes sir, I will do it on my own pace and flexibility. So I will advise you to start from financial modeling per se, so that gradual bent is there. And plus, as I said, Aarti also, I'm saying to you also, wherever you don't understand, the biggest expert is AI. You need to take its help. Okay, you need to pose your doubts. Okay, are you from Calcutta? No sir, I am from Chhattisgarh, Rajnandgaon. Okay, you are from Rajnandgaon. Okay, I have a lot of relatives living in Rajnandgaon. Okay, that's a wonderful place. Anyways, so I can also ensure that in a few days' time, maybe a week's time, I will just carry out a session for new joinees of Analyst Stack, especially those who don't have a background, so that you can get an orientation of how to handle the same. Okay, I'll do that within a week. Thank you, sir. Yeah, sure. Thank you. So most impressed, I think, who says that people are not super careful about their career when class 12 passed out student join Analyst Stack. Okay, I have a very great positive expectations about the future. Shweta Kumari Verma. Yes, Shweta, boliye. Good evening, sir. Sir, Good evening. actually, I am a CA final student. Just two papers are left. I am stuck in audit actually, and my AFM is also exempt there. And I am a homemaker and married also. And for this 5 years down the lane, I was just doing a freelance of banking sector, like a stock audit and everything I was doing. But how to mold my career in this financial modeling line, and how this will help me out in getting a good job if I want. So Shweta, when I visit Delhi, Bombay, Indore, and ask my old students to come and meet me, the most typical audiences are those who have studied CA with me. Many of them who have qualified 10 years ago, 15 years ago. And you know something, they are working with a pay package of somewhere around 16, 18 lakhs. But they are totally dissatisfied because their work is monotonous, their work is regulatory. They can't see a lot of growth happening, whereas others around them, they are finding great growth. There are others जो लोग
सीए कंप्लीट नहीं कर पाए, जैसे आपका तो बड़े सॉलिड कैरेक्टर, बड़े सैल्यूट टू यू कि आपने उसके बाद मैरिज के बाद यू डिसाइडेड टू परस्यू सीए। ओके, और अब आपका हो जाएगा, केवल 2 पेपर्स बाकी है। तो गिवन दिस टाइप ऑफ दिस थिंग, it would be advisable to not get into that field wherein you are doing the regulatory work. So if you start with financial modeling, Shweta, that's the first step. आप अपना कौन सा पेपर बाकी है? FR, financial reporting. Audit and FR. And when are you going to appear for the papers? This November? Yes, in November I will attempt this paper. ठीक है. And sorry for being personal. Do you have kids? No, sir. ठीक है. Okay. And you're not working. No, sir. Like whenever there is a pressure in my firm, then I do for 10 to 15 days, and after that, when it is over, then I am free. I'm a homemaker, and So I will advise you to handle your short-term and long-term priorities in a very balanced manner, which means आप सबसे ज़्यादा ध्यान अपने November 26 एग्जाम में दो. You okay, pay sir. attention to your audit and this thing, but somewhere you will find, okay, कि यार काश 1 घंटे 2 घंटे कुछ और करते, मतलब जो लॉन्ग टर्म Exactly. ऑब्जेक्टिव है, वहां पे आप धीरे धीरे एकदम स्लो पेस पे फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टार्ट करो, विच इज मोर ऑफ अ हॉबी. जो आप ये नहीं कर रहे हो कि ये मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है सीए के स्टडीज का, तो आप उस तरह से लो. एंड एज सुन एज योर एग्जामिनेशंस आर ओवर November 26 का, ओके, देन इन दैट केस यू पुल अप फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड finish it off and go to the capstone project. So you can't go to the capstone project now. You have to go slow by slow. Sir, actually, I'm already investing 3 hours on in teaching kids because they come and say कि आपका English अच्छा है, you are from such a good background, तो हमें पढ़ा दीजिए in Delhi here. So I just invest 3 hours on them only. Then that is what today when after तो seeing this श्वेता, session. Yes, इसीलिए मैंने बीच में पूछा था, आर यू वर्किंग? यू रिमेम्बर आई आस्क्ड यू. yes, sir. तो Sir, I'm doing job also, and these kids come for just 2 to 3 hours in the evening, and then I teach, and then I just I also enjoy, and then now I was saying that there is no productive in my career if I teach them. So they are वही, learning, but I am not having any production with that. So नहीं, पहली बात तो है, इवन व्हेन यू टीच किड्स, नंबर 1 योर मूड, आपका yes, नेचर, एंड नंबर 2 योर आर्टिकुलेशन एंड एवरीथिंग इम्प्रूव्स. ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, बट फिर भी यू yes, हैव टू बी सीरियस टुवर्ड्स योर करियर, which yes, you sir. should be. You have to tell them that I'm not able to find time, and you have to devote time towards November 26 का दोनों papers, and to Yes, some extent to financial modeling. If you start financial modeling, you will find that जब आपका November 26 के बाद CA final का results निकलेगा, ठीक है, yes, sir. that time when you are applying to companies, बिकॉज सीए हो चुका है, ओपनिंग रहेगा, एंड यू विल बी एबल टू टेल देम दैट मेरे को फाइनेंशियल मॉडलिंग आता है, मेरा इस कंपनी पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एंड यू शुड Yes, बी एबल टू डिफेंड द प्रोजेक्ट. ओके, yes, आज एक एनालिस्ट जो नेस्ले को 10 साल से ट्रैक कर रहा है और आप उस पर मॉडल बनाते हो ना, वो आपको खड़ा कर देगा कि बताओ कैसे तुमने ये चीज लिया. ही इज नॉट सेइंग यू आर अ पीएचडी इन नेस्ले, बट एटलीस्ट ही विल सी द सिंसियरिटी कि आपने समझ के किया है क्या, जो अजम्पशंस लिया है वो गार्बेज इन गार्बेज आउट नहीं किया है ना. सो आई थिंक आपका अप्रैल मई में नेक्स्ट ईयर यू विल फाइंड दैट विंडोज विल ओपन, यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब इनटू फाइनेंशियल मॉडलिंग, maybe into an FPA role, financial planning analysis, maybe into an investment banking role, maybe into a sell side role. कहीं ना कहीं opening will open up. okay, sir. So for enrollment, I will just call up Yeah, the yeah. office. बने मेरे को पता नहीं ये लोग क्या क्या डिटेल शेयर करते हैं. आई एम द लीस्ट Okay, कनेक्टेड टू द मार्केटिंग एंड सेल्स टीम, सो आई एम नॉट एबल टू स्पीक sure. एनीथिंग इन दैट रिगार्ड. ठीक है, Okay, sir. No या issues. श्योर. Thank you so much, sir. So, guys, I have tried my level best to communicate to you all what do we do in financial modeling. मैंने कोशिश की है भरपूर. Of course, I am a boring person, ठीक है, और मैं इंटरेस्टिंग नहीं बना पाया हूँगा मसाला उसाला लगा के उसको. बट द पॉइंट इज दैट, देखो, एक सर्टन पॉइंट के बाद मसाला हर्ट्स योर डाइजेशन, ठीक है. वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी कभी कभी चाहिए होता है, इफ आई ट्रीट माई सेल्फ टू बी दैट वे. तो फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत शिद्दत से पढ़ा है. IHCL का, इंडियन होटल्स का, कैसे राकेश जी ने इन्वेस्ट किया था 2020 में, क्या सोच के क्राइसिस इन्वेस्टिंग किया था. इंडिगो में अभी हुआ था तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ. द लेसन्स आर देयर ऑन यूट्यूब, वॉच द सेम, इनरिच योर सेल्फ. डोंट डू गलत वाला फाइनेंशियल मॉडलिंग. मेरे से करो या नहीं करो, अपने आप करना, बट फाइनेंशियल मॉडलिंग गलत वाला मत करना, जहां पे हाइपोथेटिकल कर रहे हो, जहां पे एक्सेल शीट भर रहे हो, वो वाला मत करना प्लीज. ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू डू इट विथ मी, बट डू इट सेंसिबली, बिकॉज द वर्ल्ड इज वेरी डिमांडिंग. My alumni people
who are there, they are asking कि आपके पास कोई बंदा है क्या जो AI ऑगमेंटेड फाइनेंशियल मॉडलिंग जानता है और इंडस्ट्री का समझ है। हम लोग बोलते हैं नहीं है, हम लोग बोलते हैं नहीं है। ठीक है, सेल साइड बाई साइड फर्म सब जगह से आता रहता है। आई एम रियली वांटिंग ये हो, एंड आई वाज वेरी हैप्पी इन माय एकेडमिक्स, CFA FRM एंड ऑल दैट, एंड आई स्टिल एम। बट आई फेल्ट दैट क्या फायदा CFA FRM पढ़ा के अगर अल्टीमेटली अभी नए पोस्ट AI वर्ल्ड में इनको जॉब ही नहीं मिलेगा तो इन दैट केस आई रियली वांटेड टू हैपन। आई फील एवरीबडी शुड ज्वाइन फाइनेंशियल मॉडलिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू, आई विल बी कनेक्टेड विथ यू, थैंक यू।